सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 941वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर कीर्ति पटेल मैम। मैम एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक और शिक्षावादी हैं जो मई 2016 से अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे द्वितीय बीएचएमएस की कक्षा समन्वयक, क्यूसीआई मानदंड 10 की संकाय समन्वयक तथा कॉलेज की नोडल अधिकारी हैं। साथ ही वे साईनाथ अस्पताल में एनबीएच अध्याय, रोगी के अधिकार और शिक्षा की संकाय समन्वयक के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने पारुल विश्वविद्यालय में भी एनएएसी मानदंड 5 और एसईपी कार्यक्रम अन्वेषणों की व्याख्या की समन्वयक के रूप में योगदान दिया है। मैम सीसीआरएच न्यू दिल्ली के एसटीएसएच कार्यक्रम की मार्गदर्शिका हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीएचएमएस परीक्षा एवं मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उनके कई अनुसंधान कार्य और लेख प्रतिष्ठित सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वे होम्योपैथी शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं। मैं हमसे अनुरोध करता हूं कि वह अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वप्निल, आपका धन्यवाद। आ, सभी श्रोतागणों को मेरी ओर से खूब सारा प्यार और धन्यवाद। आशा करती हूँ कि जो टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर आपको अधिकांश कुछ नई बातों को जानने का मौका मिलेगा। सो बिना ज़्यादा टाइम गवाए आ, मैं मेरा टॉपिक की शुरुआत करूँगी। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? क्या मुझे बताएंगे कोई प्लीज? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप स्टार्ट कर ओके सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ आज हमारा टॉपिक है इट्स ब्रिजिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनॉन टू अंडरस्टैंड द डिसीज कॉजेशन। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न that how the modern concept of microbiology have some relation with our philosophy, which Hahnemann wrote down years ago. So now when we come to understand that when you think about causation, we always think about the cause which is materialistic in their nature. But आज हम जानेंगे कैसे ऑर्गेनॉन में हनीमैन ने सालों पहले these all, the materialistic cause they have explained in such a way that we can understand that at that time there is no technological tools are available, there is no microscope is still invented. Still Honeyman has, their genius mind has given such theories, and that nowadays it is exactly explained in such a way that modern microbiology also having the same concept. So how these all things having some relation, and how our genius had found out, that the classical relationship between the causation and disease, which we are going to learn in detail. So now what Honeyman has wrought in Organon regarding this all type of causation, and what is the importance of causation when you think about the cause, or when you think about the name of disease. We know that there are lots of controversies regarding the diagnosis of disease condition. But when we think about disease, there is always such mechanism behind it. There is always some causative factors behind it. But how you take that causative factor, whether it is in materialistic way or whether it is in holistic way, that is what our science is taught us. So what Hahnemann wrought in Organon before the discovery of microbiology means before the discovery of germs, the causative agent, that is what the materialistic aspect of disease. He has write down in Organon before this theory of germs,
and their ideas that how there is development of disease, or how the different diseases are going to be developed, and they have some connection in between. That is what nowadays we exactly learn in microbiology, that how different types of microbes, they have some they have some effect on different types of our cells, and how they are going to alter some structures and function of our body, and ultimately that is what the modern medicine people gave that name, that is what we call it disease. Okay, now in this presentation we come across with how Honeyman has focused on the aspect of susceptibility, or we call it the susceptibility in which the people get influenced, whether they get sick or how they are going to be respond if they get sick or if they get ill. So his approach help us to understand the complex relationship between मैम, yes. मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैम ये हमारा हिंदी सेशन है मैम, तो प्लीज अगर आप हिंदी में आप अगर बोल पाए मैम तो अच्छा रहेगा। Okay, sure, I will try. Yeah. थैंक यू मैम। सो हनी मैंने ऑर्गेनॉन में जो लिखा है, जब जब हम बात करते हैं कि कोई कोई रोग हमारी बॉडी में होता है, तो उसका उसका क्या कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो अगर हम हनीमैन के अप्रोच को देखा जाए, तो उन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया है कि जो एक एक रोगों के जो कारण होते हैं, उसका जो एक डिसीज कंडीशन के साथ जो एक उसका जो एक रिलेशनशिप है, अगर हम इस रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं, तो हमें वी शुड नॉट फोकस, लाइक वी शुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट कॉज, मीन्स उसके कारण क्या है, कारण को ज़्यादा फोकस करने की बजाय हमें कौन कौन से पैरामीटर्स है जो हमें समझने चाहिए। तो वो समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, और हमें क्या समझना चाहिए कि एक पर्सन की पूरी बॉडी, अगर हम इस बॉडी को समझ पाएंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि कैसे एक causative factor means एक the reason behind that disease condition can affect the whole body. So we should not, what Honeyman has want to tell us, that हमें वो कारण को सोचने की बजाय हमें उसका जो सोचने का जो नजरिया है वो बड़ा करना चाहिए। कैसे बड़ा करना चाहिए, और उसमें कौन कौन से द जो फैक्टर्स है वो हमें उसमें लेने चाहिए। दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप एग्जैक्टली वी वांट टू लर्न, दैट हाउ this the causative factors of disease can have some relation with our philosophy, that is organon. So here Hahnemann have written that this study of what we call as this causation and homeopathy should we should learn in such a the broad spectrum, not the simple word like it is cause and disease ना। यहाँ एक बहुत सा प्यारा से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम किसी इफेक्ट की बात करते हैं कि कुछ करने से क्या हुआ, अगर क्या हुआ, कैसे होगा, क्यों हुआ, अगर इस सब सारे क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, तो हमें देखना चाहिए कि जिस जिस दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ों की क्या क्या अपने आप में उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो उस पूरे थिंग्स को लर्न करने के लिए यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, सॉइल एंड सीड। जैसे कहावत है ना कि जैसा बोएंगे हम वैसा पाएंगे। तो यहाँ जो सॉइल की हम बात कर रहे हैं वो है हमारी बॉडी। इस बॉडी में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, इसका सारा आंसर कहाँ से आएगा। तो वो सब स्टडी करने के लिए जब हम बीमार होते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ, कौन से ऐसे एजेंट है हमारी बॉडी में, या तो वो हमारी बॉडी में, या तो वही कहीं बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उसका क्या नेचर है, दैट इज एग्जैक्टली जिसको हम कहते हैं कॉज। ओके, सो दिस सॉइल, नाउ अगर हम उसको अगेन इन हमारी फिलोसॉफी के साथ जोड़े जाए, तो सॉइल को हनीमैन बोलते थे हमारी बॉडी।
लेकिन it is not only about that our structure, the physical body. They also have some relation with, when you think about what body means to us, वो हमारा कंस्टिट्यूशन, हमारी बॉडी का जो पूरा बंधारण है, हमारी बॉडी कैसी है, डायथिसिस, हमारी ससेप्टिबिलिटी मीन्स हमारी बॉडी की एक रोग अ, लेने की, और अगर रोग हुआ है तो उसके सामने हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, अगर ये पूरा मिला लो आप, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा, इट्स नॉट अबाउट हमारा जो फिजिकल, हमारी बॉडी जैसी दिखती है, हम जैसा बिहेव करते हैं, अगर वो सारी चीजों को मिला लिया जाए, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। और इन जनरल व्हेन यू, हम अगर उसको मिला ले हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट के साथ, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा हमारा स्वभाव कैसा है, अगर वो सब मिला लिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम सॉइल। सो दिस इज व्हाट, वेयर दिस ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स आर गोइंग टू बी अटैक्ड when we become a sufferer of such disease condition. Okay, so this is soil. Now the another component of it, that is seed, विच इज गोइंग टू बी वो जो सीड है, जो बीज है, जिसको हम जमीन में डालने वाले हैं, जिसमें से कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है, दैट इज अप टू अस, मीन्स वो जमीन कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ डाला है तो उसमें से ऐसा ही होगा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि मैंने गेहूं डाला है उसमें से गेहूं ही होगा, तो दैट इज मटीरियलिस्टिक कंसेप्ट। उसमें से क्या होगा, वी नो दैट अगेन इट इज मटेरियलिस्टिक। बट अगर उसको हम किसी और अदर फैक्टर के साथ जोड़े जाए, जो हमारी बॉडी में होता है, व्हेन हमें कोई रोग होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो क्या होता है, सो इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड इट, वी ऑलवेज टेकन केयर ऑफ दैट इट इज नॉट द ओनली वन थिंग दे कैन एबल टू प्रोड्यूस डिसीज। मीन्स ऐसा कोई एक कारण नहीं है जो हमारी बॉडी को हानि पहुंचा सके, जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर सके, जो हमारी बॉडी को एक रोगित परिस्थिति में डाल पाए। सो व्हाट इज दिस सीड? This seed, we in a context with the modern science, they call it as a germs. Okay, germs means germs can be any kind of the living creatures like bacteria, virus, parasite. Anyone can affect our body and they can produce disease. Now, what older time, the people think about like around in 18th centuries, क्या बोलते थे लोग कि कैसे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोग होते हैं, अगर वो होते हैं तो वो फिर उसको उसको कैसे ठीक करते हैं, वो सब हमने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में हम पढ़ते हैं कि 18th सेंचुरी मेडिसिन, 19th सेंचुरी मेडिसिन, उसमें क्या फर्क था। तो अगर हम देखे जाए, in 18th centuries, they were also behave like on that time they are focusing more on the both parameter. Soil is also equally important, मीन्स हमें सॉइल के बारे में भी देखना है, और जो सीड है, अगर हम दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे, अगर दोनों को हम एक प्लेन पे अगर रखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ जो जो डिसीजेस है वो कैसे होती है, तो हम समझ पाएंगे। दैट इज व्हाट द पीपल यूज टू थिंक अबाउट इन ओल्डर टाइम्स। बट नाउअडेज व्हाट हैपन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मीन्स जर्म थियरी, when we come to know that there are different type of small living creatures are responsible, means जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जो ये सारी डिसीज कंडीशन डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर जब जब हम ये मानने लगे हैं नाउअडेज, तब ये जो रिलेशनशिप था बिटवीन सॉइल एंड सीड्स, now it become like fragile. Now we are focusing more, मीन्स हम अब ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो पॉजिटिव फैक्टर, मीन्स जो रोग के जो पैरामीटर्स है उनको देने लगे हैं, रादर देन वी आर फोकसिंग मोर ऑन द सॉइल विच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस ऑल वेराइटीज ऑफ जंक। सो हियर हमें से देखना चाहिए कि सॉइल एंड सीड बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, मीन्स ये दोनों चीजें, ये दोनों पैरामीटर इक्वली इम्पॉर्टेंट है व्हेन वी वांट टू स्टडी एक रोगित
पर्सन की अगर स्टडी हमें करनी है, तो these both parameters are equally important, not the second one, that the seed one. So here again, in understanding the disease causation, it's crucial to consider both the soil and the, well, soil means the constitution of that individual. ओके, जो रोगित व्यक्ति जो है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका फिजिकल मेकअप है, उसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस कंडीशन में वो क्या फील कर रहा है, दिस एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट व्हाई दिस थिंग हैपन, कैसे हुआ, किससे हुआ है, वो जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये सारी बातें। लेकिन ये सारी बातों को अगर एक प्लेन पे आप मिला लोगे, दैट इज व्हाट हनीमैन हैज टॉट अस इन द द मैनेजमेंट ऑफ होम्योपैथिक केस। हम होम्योपैथी में कैसे उपचार करते हैं, उसमें हम ना तो कोई डिसीज का नेम लेते हैं, ना तो वो किससे हुआ है उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो पेशेंट हमें बता रहा है उसके उसके रोग के बारे में, उसके रोग के चिन्हों के बारे में, तो वो सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक एक रोग का नाम जान लेना और वो किससे हुआ है उसका एक कारण जान लेना। So histologically, the concept of diathesis and constitution were central to the medical practice. However, with the advent of bacteriological investigation, with the demonstration specific germs directly cause many diseases. Means जैसे जैसे बैक्टीरियोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, तो जो टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हम जानने लगे, तब से क्या हुआ कि उसमें जो जो डिसीज को जानने की जो हमारी जिज्ञासा थी वो कम होती गई, और जो ऑर्गेनिजम्स है उसका फोकस हम तो बढ़ता गया। तो उससे क्या हुआ, द कंसेप्ट ऑफ जो डिसीज था वो हॉलिस्टिक से now it become like materialistic. So this is again the against the law of homeopathy. Now, during honeymoon time, they have given this, the fine relationship means ये जो पूरा एक संबंध है between the rogue and that the causative factors, which is nicely explained in the chronic disease book, which is written by again Honeyman. Now, in ancient time means around 18th century, क्या हुआ था, और हाउ हनीमैन come to know that there is something. Honeyman also, as I told you in earlier also, that honeyman, though in their time the microscope was not there, okay, उसी टाइम में कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ऐसे स्मॉल क्रिएचर वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम में जब इतने सारे लोग एक साथ तरह तरह की रोग पीड़ा से मर रहे थे ड्यूरिंग दिस 1883, there is one disorder at that time, we don't know, that is again cholera. But at that time what happened, the number of people they having that type of symptoms, and on when जो सारे लोग थे वो स्टडी कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जिससे इतने सारे लोगों को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। नाउ एट दैट टाइम हनीमैन हैज ऑल्सो टोल्ड यू दैट जो जो कीटाणु उसमें दिख रहे हैं वो कॉमा शेप के हैं, उसका डायमेंशन भी दिया था कि माइट बी इट इज लेस देन 1/10,000 each, is they are very small in size. They can cultivate also. And after this all the the parameters what that the scientists Koch have seen, after that they have given that the sentence, the statement दिया गया कि germ were the cause of cholera. So how this cholera invention is occurred during that Asia and all the Asian continent, the people are having that symptoms of GI tract affections and all that, and people want they जानना चाहते थे कि क्या क्या हो रहा है। And during that time also, honeymen have given some clues regarding that small creature is there, and that might be have some relation with this,
वो जो छोटे छोटे कीटाणु है उसका कोई रिलेशन ये डिसीज के साथ हो सकता है। लेकिन एज आई टोल्ड यू दैट एट दैट टाइम देर इज नो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, so we cannot give any name that this is the organism which is responsible. After that, what happened? There is the another scientist, that is Pitt and Coffert Winich. Though people are telling about that ये organism cholera है, लेकिन that Munish don't have belief on that. और मुनीश ने क्या किया, वो जो कोमा बैक्टीरियाज थे, ओके, दे डोंट बिलीव दैट एंड द कोमा बेसिलस वर द इफेक्टिव, मीन्स उन्होंने नहीं माना कि ये जो कोमा बेसिलाई है वो ही ये कॉलेरा होने का एक रीजन है। सो उन्होंने क्या किया कि एक स्पून, मीन्स एक चम्मच में, वो जिसमें वो जम्स को कल्टीवेट किया था, जिसमें वो जम्स को ग्रो किया था, वो उस उन्होंने स्वेलो कर लिया, मीन्स उन्होंने अपने मुंह से लिया। नाउ व्हाट हैपन, व्हेन उन्होंने ये लिया, उन्होंने अकेले नहीं लिया, उनके साथ उनके सारा पूरा जो ग्रुप था, उनके जो असिस्टेंट थे, सबने ये पूरा जो जर्म फील्ड जो कल्टीवेटेड जो पूरा मटेरियल था उन्होंने स्वेलो कर लिया, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि ऐसे यू नो कॉमा बेसिलाई जैसा कुछ है और उससे ये कॉलेरा हो रहा है। जब उन्होंने ले लिया तो उससे क्या हुआ, नॉन सफर एनी इल इफेक्ट, मीन्स उन सारे ग्रुप में से किसी को भी कॉलेरा के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपन, नाउ दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स के साथ मिलके ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया, उससे क्या पता चला कि भाई उन्होंने मान लिया कि भाई इसी से कॉलेरा नहीं हो रहा है। नाउ व्हेन दे swallowed एंड कल्टिवेटेड बैक्टीरिया फॉर 3 days विदाउट एनी हार्म, उन्होंने ये सेम मटेरियल 3 days तक लिया। उसमें से वो जो उनका पूरा ग्रुप था, उसमें से एक पर्सन को क्या हुआ, दैट पर्सन हैविंग माइनर स्टमक अपसेट, मीन्स उनको पेट में थोड़ा सा पेन हुआ। हाउएवर द वन मोर इंडिविजुअल, मीन्स उसमें से एक और पर्सन भी था जिसको थोड़ा वीक फील हो रहा था, एंड एंड दैट पर्सन, उसको क्या हुआ, उसको कॉलेरा के सिम्टम्स दिखाई दिए, एंड दैट पर्सन रीच ऑलमोस्ट अप टू डाई। अब इस एक्सपेरिमेंट, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया रिगार्डिंग दिस द मटेरियल, कल्टिवेटेड मटेरियल दे हैव swallowed, what conclusion they get, that there is something which is there in that particular cultivated material, and that cultivated material Cox have given the name that cholera bacilli. They shown that the Cox comma bacilli can indeed cause real cholera, but only कब कॉलेरा होगा, when the right conditions are present। ये सारे एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेटली हम क्या समझ पाए इस एक्सपेरिमेंट से, नंबर ऑफ पीपल ने, मीन्स बहुत सारे, पूरा ग्रुप था उनका मुनीच का, जिन्होंने ये सेम कल्टीवेटेड फॉर्म जिसके अंदर ये कॉलेरा के कीटाणु ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने सबने ये खा लिया, लेकिन उसमें से सबको कॉलेरा नहीं हुआ। जर्म्स तो सब में थे, सबको नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या है, जब हम कोई पॉजिटिव फैक्टर, यानी कोई जर्म्स से या कीटाणु से या कोई ऐसा ऐसा मटेरियल जो हमारी डिसीज, हमारी बॉडी में कोई रोग पैदा कर सकता है, अगर हम उसके सामने आते हैं, हम उससे एक्सपोज होते हैं, तो उसका मतलब वो नहीं होता है कि एवरी टाइम वो रोग और जिससे जो रोग होता है वो हमारी बॉडी में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके पीछे क्या हो सकता है, क्यों कहीं पीपल को वो रोग हुआ, कहीं को नो नहीं हुआ। जो मटेरियल उन्होंने लिया वो सब में तो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। अगर हम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो क्या होता है, अगर हम किसी बैक्टीरिया को खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया जो भी रोग पैदा करता है वो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके इसके पास पीछे कैसे, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कोई उसमें से कई कई लोगों को रोग होता है, कई लोगों को नहीं होता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा होता है, कई लोगों को कम होता है।
सो ये आंसर कहाँ से मिलता है? ये आंसर हमें मिलता है होम्योपैथी से, जो हमारे हनीमैन ने दिया है ससेप्टिबिलिटी चैप्टर में। सो हियर ऑल्सो द सेम दैट example is there at the time of Hofland. We know that in lesser writing of Honeyman, this all experiment and this all Hofland जर्नल की जो बुक है उसके अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जिसको पढ़ के हम पता कर पाते हैं कि जब पुराने टाइम में ये सब टेक्नोलॉजीज नहीं थी, मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, तब हनीमैन ने कैसे ये सारी थियरीज और उनका जीनियस माइंड कैसे ये सारी थियरीज को एक साथ जोड़ के हमें इतनी यू नो द वेरियस काइंड ऑफ डिसीज प्रोसेस ही हैज एक्सप्लेन। सो हुफलैंड क्या बिलीव करते थे कि कॉलेरा वॉज कॉज बाय एटमोस्फेरिक काम, मीन्स कॉलेरा क्यों हो रहा था ये 1830 के अराउंड, क्योंकि वो जो पूरा जो हमारा नेचर है उसमें ऐसा कुछ हुआ है, और या तो हमारी सॉइल में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक साथ इतने सारे लोगों को कॉलेरा जैसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। बट हनीमैन क्या सोच रहे थे? हनीमैन उससे एग्री नहीं करते, मीन्स हनीमैन ऐसा नहीं मान रहे थे कि या तो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा हुआ है या तो सॉइल में ऐसा कुछ हुआ है। ओके, वो क्या बता रहे थे? सो उन्होंने लिखा है उन्हें जैसे द मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एशियाटिक कॉलेरा, मीन्स कैसे ये कॉलेरा का रोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है। ये आर्ग्यूड दैट कॉलेरा स्प्रेड ओनली थ्रू कंटेजियन। व्हाट इज कंटेजियन? We are going to explain in later on slide. Moving from one person to other, he explained that in confined damp places like seeps, cholera miasm could multiply quickly. तो उसी टाइम में जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फिर भी जो रोग और जो जो लोग आ रहे थे ये सारे सिम्टम्स कॉलेरा के लेके, जब हनीमैन ने ये सब सारे लोगों को देखा, समझा, तो उन्होंने सोचा कि कैसे ये रोग कैसे हो रहा है। तब उन्होंने ऐसा अज्यूम किया था कि कॉलेरा एक लोग से, एक पर्सन से दूसरे, मीन्स एक अगर इसी एक पर्सन को कॉलेरा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में जो दूसरे लोग हैं उसको उससे कैसे स्प्रेड हो रहा है। अगर स्प्रेड हो रहा है तो वो कौन सी जगह पे ज्यादा, तो उन्होंने तभी सोचा था कि डैम प्लेसेस मीन्स जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो जो एरियाज जो वो हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजियंस, जो नदी नाले के पास वाले जो रीजियंस है, तो ऐसे रीजियंस में ये कॉलेरा का जो बेसिलाई है दे कैन स्प्रेड, मीन्स ऐसे रीजियंस में कॉलेरा स्प्रेड हो सकता है। ऐसे हनीमैन ने अज्यूम किया था ड्यूरिंग दैट एपिडेमिक ऑफ 18 31 एशियाटिक कॉलेरा। एंड हनीमैन हैव सजेस्टेड ऑल्सो दैट देर इज, क्या है ऐसा जो कॉलेरा को फैला रहा है। तब हनी मैंने बोला था कि एक छोटी सी वेरी माइन्यूट इनविजिबल, जो हम आंख से देख नहीं पा रहा है, ऐसा एक लिविंग क्रीचर है were likely what caused cholera and spread the disease। मिस हनीमैन ने ऐसी पूर्वधारणाएं लगाई थी कि कोई ऐसा छोटा सा जो हम आंख से देख ना पाए, ऐसा कोई लिविंग क्रीचर है जो इस रोग के पीछे जवाबदार है, जो एक रोग के पीछे रिस्पॉन्सिबल कॉजिटिव फैक्टर है। देन हनीमैन हैज अगेन डिस्क्राइब दिस। नाउ कैसे हनीमैन ने ये सब सारी बातों को एक्सप्लेन किया है। नाउ द पेस्टिफेरस इन्फेक्शियस मैटर being carried on clothes। तो हनी मैंने वो भी बोला था, ये जो छोटा सा टाइनी सा एक लिविंग क्रीचर्स है जो कॉलेरा जैसा रोग फैला रहा है, वो कैसे स्प्रेड होगा। मीन्स हम आज बोलते हैं ना कि एक रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है। सो देर इज ऑल्सो सम रूट्स जिसको हम ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बोलते हैं। Now, at that time, we know that though there is some invention of, some germs are there, but still we don't understand that how, तब उतना भी पता नहीं था कि हाँ कीटाणु जैसा कुछ है, जर्म्स जैसा कुछ है, लेकिन वो कैसे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, किसी मैकेनिज्म से वो डिसीज पैदा करते हैं, वो सारा नॉलेज तब नहीं था। लेकिन तब भी हनीमैन ने पॉसिबिलिटीज बताई थी
कि ये जो जो कॉलेरा के बेसिलाइस है वो क्लोथ, फिर हमारे कंटामिनेट हैंड्स हो, मीन्स हमारे हाथ पे हमारे एक पर्सन के हाथ से अगर हम कुछ और चीजें पकड़ते हैं तो हमारे हैंड से, किसी के इंस्ट्रूमेंट अगर हम सेम यूज कर रहे हैं, मीन्स रिगार्डिंग nowadays we call it as a hygiene. So by this different type of root, this infection can spread. Means ये कॉलेरा बेसिलाई भी क्लोथ या हैंड्स या इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. Now this insight remarkably anticipated Koch's discovery of cholera bacilli over the 50 years. हनीमैन के इसे सब कह दाने के बाद कॉक्स ने कॉलेरा बेसिलाई का मीन्स कॉक्स ने ये ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लिया और उसका नाम लिया अगेन द विब्रियो कॉलेरी. ओके, जो कॉलेरा रोग पैदा करने के लिए एक कॉजेटिव फैक्टर है. But despite lacking microscope and the modern term like bacteria microbes, Hahnemann, with his keen analytical mind, intuition and powerful reasoning, accurately described the disease transmission. Means कॉक्स ने तो उसके बाद ये इन्वेंशन किया कि हाँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कॉलेरा पैदा कर रही थी 50 years बिफोर, वो वाइब्रियो कॉलेरी ही है, और वो कैसे जो ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं. लेकिन हनीमैन के वो एनालिटिक माइंड ने 50 साल बिफोर, जब ये कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ था, तभी उन्होंने बता दिया था कि एक ऐसा टाइनी सा स्मॉल लिविंग क्रीचर है जो एशियाटिक कॉलेरा पैदा कर रहा है, और वो कैसे एक जगह या तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है. एंड हनीमैन ने उस टाइम पे ये जो क्रीचर्स है उसको नाम दिया था मायाज्मा. बट यू नो बट द क्लेरिफाइड इट विद डिस्क्रिप्टिव टर्म. उन्होंने क्या टर्म दिया था एट दैट टाइम? इट इज इन्फेक्शियस, कंटेजियस, एक्सेसिवली माइन्यूट, विजिबल लिविंग क्रीचर. सो एट दैट टाइम्स हनीमैन ने क्या वर्ड यूज किया था? दैट इज मायाज्मा. एंड वो क्या था? तो कि एक इन्फेक्शियस मीन्स इन्फेक्शन फैलाने वाला, कंटेजियन था मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली जा सकता है, बहुत छोटा है, हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उसको, लेकिन वो कुछ कर रहा है हमारी बॉडी में, और वो था एशियाटिक कॉलेरा. So now this is the two basic, you know, ये टू टाइप ऑफ जो कॉजेटिव फैक्टर्स है और टू टाइप ऑफ जो डिसीज मैकेनिज्म है, अगर हमें उनको जानना है तो हमारे पास दो तरह के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है. एक है हमारा हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड, मीन्स जो हमारी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है कि कैसे मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ, द इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन. सालों पहले हम कैसे ट्रीट करते थे पेशेंट को, अब हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं. तो अगर हम हिस्टोरिटिकल वे में देखा जाए तो व्हाट इट इज दैट our comprehension of disease causation has evolved dramatically from ancient myths and belief through Hippocrates. We know when you think हम सोचते हैं हिपोक्रेट के बारे में. हिपोक्रेट क्या बोल रहे थे उस हिपोक्रेट्स के टाइम में? हम रोग और जो चिकित्सा पद्धति थी हमारी वो कैसी थी, तब हमें याद करते वो थियरी ऑफ ह्यूमर्स. ओके, द बैड ह्यूमर्स आर देयर एंड there is something happen to that humor, and because of that change in the quality and the quantity of humor, हम क्या बोलते थे कि उसकी वजह से लोग बीमार होते हैं. सो अगर हम हिपोक्रेट की थियरी को पढ़े तो उनके हमें पता है कि हिपोक्रेट इज ऑलवेज हिपोक्रेट किसके बारे में बताते हैं? वो जो चार ह्यूमर्स है, जैसे एयर है, वाटर है, फायर है, अर्थ है. अगर ये चारों जो एलिमेंट है जिसको ह्यूमर बोलते हैं, बोलते थे हिस्ट्री में, राइट, अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस होता है, ओके, तो इन इम्बैलेंस की वजह से हम बीमार हो सकते हैं. भाई इन 18th सेंचुरी व्हाट हैपन? द 18th सेंचुरी में हम जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जो था उससे हम थोड़े थोड़े इम्पेरिकल वे में आ गए. मीन्स दिस इज हाउ वी गेट इवॉल्व. ये कैसे हम पहले क्या सोचते थे डिसीज के बारे में, हम पहले क्या सोचते थे
पॉजिटिव फैक्टर के बारे में और अब क्या सोच रहे हैं। बट जैसे जैसे टाइम जाता गया, जैसे सारे सारे तो नई नई चीजें हम पढ़ते गए, नई नई टेक्नोलॉजीज जब बढ़ती गई, तो उन उन सब सब एरियाज को मिला के हम धीरे धीरे वो ट्रेडिशनल जो हमारी बिलीफ्स थी, जो ट्रेडिशनल जो हम सब सारी चीजों को मानते थे, उससे हम धीरे धीरे चेंज होके हम आ गए मॉडर्न फ्रेमवर्क में। मॉडर्न फ्रेमवर्क क्या कहता है? रोग और उसके होने वाले कारणों के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फ्रेमवर्क क्या है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है द द मॉडर्न जर्म थियरी। उसमें क्या है, अगेन जो हम मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डिसीज बोलते हैं, जिसको कि जो 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 डिसीजेस हमारी बॉडी में हो रही है, उसका बहुत सारा अ, जो इम्पैक्ट है वो कहाँ से आता है, कि भाई कौन से बैक्टीरियाज है, कौन से वायरस है, कौन से पैरासाइट्स है जो हमारी बॉडी में आते हैं और हमें हमें बीमार करते हैं। Okay, so the modern framework is more about what? This all germ theories. That is what we call as materialistic concept, as well as some concept which have, having impact on our life, like what lifestyle is, what is our genetics, you know, which type of occupation where we are working. These all are the type of etiological factor जिसको आज हम बोलते हैं, or they all are, means these all type of factors have some impact on our life. Now what Honeyman understand, or what Honeyman has told us regarding the disease condition. So during Honeyman era, there was limited understanding of disease etiology and pathogenesis, especially the theory of regarding the acute infection. हमें पता था हनीमैन के टाइम में डिसीजेस थे, मीन्स रोग थे, लेकिन जो रोग की पूरी जो मैकेनिज्म है, कि अगर एक एक पर्सन डिसीज से सफर हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं और वो डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उतना कुछ पता नहीं था। लेकिन जिस जिस पर्सन को जैसे भी सिम्टम्स डेवलप होते थे, तो एंशियंट थेरापी से हम उसका ट्रीटमेंट करते थे। सो हनीमैन के टाइम में बेसिकली फॉर द एक्यूट डिसीजेस, ऐसी ऐसी ऐसे रोग जो जो शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, हमें पता है व्हाट एक्यूट कंडीशन इज। सो इन दैट टाइप ऑफ डिसीज कंडीशन, the lots of confusions are there, that how these all disease conditions are going to be produced, and how we can deal with that. So despite this, the consistent clinical presentation of acute infectious disease allow them to recognize as the unique entities, like जो acute conditions थी वो different थी, and we know that in acute condition either patient is going to be survive, or either patient is going again the the period of infection, or the what we call as the pace of disease जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। सो हियर हनीमैन के टाइम में जो डिसीज के अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिकली फॉर द एक्यूट डिसीज कंडीशन, ओके, एंड दैट टाइम द इन्फेक्शियस डिसीजेज आर ऑल्सो वेरी मच प्रिवेलेंट, तो वो उतनी पावरफुल नहीं थी। जब हम बात करते हैं डिसीज की थियरीज के बारे में, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में, सो बिकॉज ऑफ दैट, सो व्हाट अंडरस्टैंडिंग or what explanation Honeyman has given. So he wrote in that aphorism number 73 in sixth edition, that he described acute miasm as a condition that recur in a consistent manner, thus becoming known by traditional name to illustrate their spread, to explain the term dynamic influence. Means तो उस टाइम पे जो जो एक्यूट डिसीजेस हो रही थी, हनीमैन ने उसको क्या नाम दिया था? डायनेमिक इन्फ्लुएंस। किसको? जिससे हो रही थी। मीन्स डायनेमिक इन्फ्लुएंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी डायनेमिक है,
हमारी मेडिसिन डायनेमिक है, जो डिसीज बॉडी में हो रहा है वो भी डायनेमिक है, तो जिससे हो रहा है वो भी डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या? हम कोई एक चीज को पकड़ के बैठ जाएं कि भाई ये है, ऐसे होता है, इससे होता है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर बिहाइंड इट। एंड जब वो हम सोचते हैं तो हमें वो मल्टी डायरेक्शनल वे में सोचना चाहिए, ना कि एक सिंगल फैक्टर को लेके हम बैठ जाएं कि इससे ही ये चीजें हो रही हैं। सो जस्ट एज अ चाइल्ड विथ स्मॉल पॉक्स और मीजल कम्युनिकेट टू अ नियर हेल्दी चाइल्ड इन अ विजिबल मैनर, मीन्स यहाँ हनीमैन ने बात करी है कि जो डिसीजेस हो रहे हैं बेसिकली द डिसऑर्डर, दैट इज व्हाट दे हैज कॉल्ड इन्फेक्शियस। आज तो हमें पता है कि जब हम बोलते हैं कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज है, उसका मतलब क्या है? ये ऐसे डिसऑर्डर्स है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। At Hahnemann time also, they have used this word dynamic influence. And in that footnote, they have mentioned that nature of infectious disease. That smallpox, they have given the example of smallpox that they can spread, means smallpox भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, अगर वो बच्चा हेल्दी है तो भी उसको एक 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 इंसान से दूसरे इंसान में वो रोग जा सकती है। तो वो क्या बता रहा था? द नेचर ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। बट एट दैट टाइम एज द एडवांस, द नॉलेज ऑफ मेडिसिन is not there, so we have not used such term like infectious disease condition and so on. But still Hahnemann has mentioned in Organon regarding this type of nature of acute disease. नाउ जैसे जैसे जर्म थियरी आगे बढ़ती गई, हमने देखा कि भाई कॉक्स ने ढूंढ डाला कि कॉलेरा पेसिलाई है। म्यूनिच ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उन्होंने पहले नहीं माना, फिर माना कि हाँ ऐसा कुछ है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। नाउ डिफरेंट साइंटिस्ट हैज केम, तो उन सब देखते गए और ढूंढते गए कि जब हम हमारी बॉडी ऐसे डिसीज कंडीशन से सफर होती है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। So in 19th century, Louis Pasteur, this is a famous name. We know that Louis Pasteur is one of the scientists who has first to prove that, उन्होंने पहली बार ऐसा प्रूव किया था कि that germs could spoil food and cause illness, means ऐसे कीटाणुस हैं, ऐसे जर्म्स हैं एटमॉस्फेयर में जो क्या अफेक्ट कर सकते हैं, जो स्पॉइल कर सकते हैं फूड, मीन्स हमारा जो खाना है उसको स्पॉइल कर सकते हैं। और ऐसे स्पॉइल हुए खाने को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हम भी बीमार हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट लुइस पास्चर हैज गिवन। सो अर्लियर बिलीव दैट, पहले हम क्या मानते थे? देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज बैड एयर, मीन्स मायस्मा, और द इम्बैलेंस इन बॉडी, मीन्स जैसे हिपोक्रेट के टाइम में हम मानते थे कि हमारे डिफरेंट बॉडी ह्यूमर्स है, अगर इस बॉडी जो हमारे बॉडी ह्यूमर्स है उसमें कुछ इम्बैलेंस होगा तो हमें डिसीज होगी। उसके बाद आए लुइस पास्टर जिन्होंने बताया कि अकेले ह्यूमर ही नहीं है जिससे हम बीमार हो सकते हैं, ऐसा कोई है जो एटमॉस्फेयर में रहता है, जो लिविंग क्रीचर है, जो हमारे फूड को भी स्पॉइल कर सकता है। अगर ऐसा फूड हम खाते हैं तो उससे भी हम रोगित हो सकते हैं ना। जो पास्चर ने जो भी बताया, ओके, फिर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए एंड दैट सो वो एक्सपेरिमेंट से कैसे हम एक थियरी ऑफ वैक्सीनेशन तक पहुंचे, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। पहले हमने ढूंढा कि भाई क्यों हम बीमार हो रहे हैं, उसमें से एक बीमार होने का कारण हमें मिला कि वो आइदर तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। अगर उससे बीमारियां हो रही है तो उससे बचने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही सारे एक्सपेरिमेंट के साथ पास्चर ने ढूंढ डाला कि उन्होंने पहले ढूंढा था रेबीज वैक्सीन। उस वैक्सीन में उन्होंने वो कैसे अफेक्ट करती है उसकी थियरी उन्होंने क्या दी थी कि जो जो जर्म्स हमने ढूंढे हैं, अगर वो जर्म्स को वीकन करके उसको थोड़ा सा उसका जो
क्या बोलते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी शक्ति होती है, अगर उसको हम वीक कर दे, वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो जर्म्स है, उसको हम वीक कर दे और फिर सेफली अगर हम ह्यूमन बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करें, तो उससे क्या होता है, आवर बॉडी इज ऑल्सो गेट ट्रेन, मीन्स हमारी बॉडी भी उसके सामने फाइट करने के से ट्रेन हो जाएगी. सो दिस इज द कंसेप्ट, okay, which was given by again this Louis Pasteur, and that is how slowly and gradually we have developed the whole science of vaccination. So this is also the, the theory of causation, means हमने कॉज ही नहीं ढूंढा. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिसिन उन्होंने ऑर्गेनिज्म ढूंढी, फिर अगर वही ऑर्गेनिज्म को अगर आप वीकन फॉर्म में अगर कोई बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आपकी बॉडी क्या करेगी, वो ट्रेन होगी. कैसे ट्रेन होगी और किसके लिए ट्रेन होगी, कि भाई अगर ऐसी सेम ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो उसके सामने कैसे फाइट करना है. यहाँ हमने वीकन डाली है, उसका जो पावर है वो हमने वीक कर दिया है, तो शायद वो ट्रू डिसीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी. और दिस इज, ये हमारी एक मेथड है जिससे हमारी बॉडी उस ऑर्गेनिज्म के सामने लड़ना सीखेगी. ओके, नाउ ये जो बात हुई कि भाई हम कैसे वैक्सीनेशन तक पहुंचे और इसमें क्या रोल था पॉजिटिव फैक्टर का. नाउ हनीमैन हैज यूज दिस टर्म डायनेमिक stem for the scientific limitation of that era, but the germ theory, the true nature of infectious agent remain a mystery. मीन्स ये तो सारी बात हो गई, लेकिन फिर भी जो जर्म थियरी थी उसमें क्या हुआ, वो जो थियरी अवेलेबल थी उसमें तो हमें पता चला कि भाई ऐसा कोई क्रीचर्स है जिसका नाम हमने दिया बैक्टीरिया, उसी से रोग हो सकते हैं. लेकिन जो रोग होने की जो प्रोसेस है, जिसको हम पैथोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं पैथोजिनेसिस, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं था. तो वो तो अभी मिस्ट्री ही थी. सो वाइल अर्ली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तब उन्होंने बताया कि ये जो सारी ऑर्गेनिजम्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स उसके बाद दिए गए. सम, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद आए वायरसेस एंड पैरासाइट्स एंड ऑल दैट. एट दैट टाइम हनीमैन ने क्या कहा, हनीमैन तो ये मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट में बिलीव करते नहीं थे. तो उन्होंने क्या बोला, they have faced with this unexplained contagion, Honeyman attribute acute infections disease to invisible dynamic noxious influence और मायाजम. तब उन्होंने ये जो सारी बातें हम कर रहे थे उसको क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया डायनेमिक नॉक्सियस इन्फ्लुएंस, मीन्स द डिसीज कॉजिटिव फैक्टर. लेकिन वो पॉजिटिव फैक्टर जो मॉडर्न मेडिसिन से कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वॉज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ द एरा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग माइक्रोबियल पैथ. मीन्स उस टाइम में जो पैथोजिनेसिस ऑफ डिसीज थी और जो पॉजिटिव मैकेनिज्म थी डिसीज की, वो उतनी ज़्यादा यू नो एक्सप्लेनेबल नहीं थी. वो नहीं पता था कि भाई कोई रोग कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ उतना ज़रूर पता था कि जो कॉज है वो है, लेकिन वो कैसे डिसीज प्रोड्यूस करते थे वो अभी तक हमें नहीं पता था. द इनएबिलिटी टू पिन पॉइंट मटीरियल कॉज लीड टू स्पेक्यूलेटिव थियरीज. तो उसके बाद सारी थियरीज बनना चालू हुई कि भाई कैसे एक जो पॉजिटिव मीन्स जो एक रोग का जो कारण है वो कैसे रोग करता है ह्यूमन बॉडी में. And that is how slowly and gradually the whole concept of the modern microbiology has evolved. So ये सारे जो द फाइन फिगर एक अच्छा सा एक डायग्राम है जो बता रहा है कि how Hahnemann has give that the concept of vital principle. Okay, now when we think about that vital principle, these are the factors they are exactly going to decide that what vital principle is. So here the cell theory means अगर हम हमारी बॉडी को
रोगों से फ्री करना चाहते हैं, अगर हमें रोग मुक्त होना और हमें बीमार नहीं होना है, तो कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। तो फर्स्ट है सेल थियरी। सेल क्या है हमें पता है, व्हेन जब हम हमारी बॉडी के बारे में सोचते हैं, उसका एक छोटा सा जो यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सेल। सो द फाउंडेशन ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन मीन्स अगर सारे सेल अपने ठीक वे में काम कर रहे हैं, उसका मतलब है हमारा बॉडी नॉर्मल है, हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं है। उसके बाद है द थियरी ऑफ जीन। वी नो द as the science get evolved, we have developed the various kind of the theories regarding the etiological factor. So genetics is one of them. Hereditary information, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हेरिडेटरी मेकअप है हमारा, वो कहाँ से आता है, हमारे जीन्स जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, तो उसका भी रोल है when you think about any disease. Then evolution, जैसे हम माँ के गर्भ में होते हैं, जिससे हम बड़े होते जाते हैं हमारे सेल, हमारी बॉडी भी इवॉल्व होती जाती है। तो वो इवोल्यूशन दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हेल्थ प्रोसेस। होम्योस्टेसिस वो हमें पता है, द इक्विलिब्रियम, द इंटरनल इक्विलिब्रियम। ईच एंड एवरी सेल, हमारी बॉडी में जितने भी सेल है वो सारे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस होता है तो हम रोगित होते हैं। सो एंड थर्मोडायनेमिक्स मीन्स ये सारे जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, उस सब के बीच एक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सो हनीमैन ने यहाँ वाइटल प्रिंसिपल के ऊपर जोर दिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि ये जो वाइटल प्रिंसिपल हमारा है वो किससे फॉर्म होता है, तो ये उसके 5 एलिमेंट्स है। ओके, ये 5 फंडामेंटल हमारे कंसेप्ट है। अगर हम ये पांचों कंसेप्ट को मिलाकर चले तो इससे हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। So this is again the evolution pattern. What happened in 15th and then 18th century, then how Pasteur has find out this germ theory, means how they have evolved the whole concept of germ, and ultimately there is a discovery of virus and all that. So this is the different the contribution of our scientists, that they come to know that how the causative factor of disease we can come to know. Now what Hahnemann has classified, as I told you, that in acute disease condition, but Hahnemann have brought down in organ, and that again it is a mystery that how acute diseases are developed, and there is a key role of infectious disease. So at that time Hahnemann has gave the word miasm, and that miasm for acute disease condition, they have called it like the recurrent acute miasm, or some they have called it like fixed miasm, some they have called it like half acute miasm. This everything they have wrought in the 73 aphorism, where they have discussed the nature of it is a they have classified the disease condition, and their classification, they have write down that how acute disease having classified into epidemic and endemic and pandemic. Okay, so these are the some examples are given, that cholera and yellow fever and smallpox, and these all are the infectious disease which is very prevalent at that time also. Nowadays, again, we have advanced, treatments are available and we don't have much cases of it, but still it is there. Then as the science get evolved and evolved, क्या हुआ, हम जर्म से बाहर होके, germs is not the only cause of disease. There are multiple other factors are also there. So which are that factor which also can affect our body? So occupational causes are there, lifestyle factors are there, nutritional deficiencies are there, environmental factors are there. Now these all are the material cause. ये तो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, हमारी मेडिसिन, पैथोलॉजी, सारी बुक में लिखे हुए हैं। लेकिन ये सारे कॉजेटिव फैक्टर का हमारी होम्योपैथी से क्या रिलेशन? तो एफोरिज्म नंबर 77 में हनीमैन ने बोला है, जब उस टाइम पे ये सारे कॉजेटिव और तो
डिसीज प्रोड्यूसिंग द कॉजेटिव फैक्टर्स सब उस टाइम ढूंढे नहीं गए थे। फिर भी हनीमैन ने ऑर्गेनॉन में लिखा हुआ है कि जो सारे क्रॉनिक डिसीजेस है बेसिकली उसमें जो डेफिशिएंसीज है और कई बार क्या होता है, सम फंडामेंटल कॉज होते हैं, जैसे स्मोकिंग का ले लो, अल्कोहलिज्म ले लो, और हम जो मैम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर, हेलो। मैम आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे मैम। ओके ओके, आई विल फिनिश इट फास्ट। डाइट और रेजिमेंट, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है बेसिकली जो क्रॉनिक डिसीज प्रोड्यूस करने में अ, आसानी से पाए जा सकते हैं। तो ये सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको भी हम क्रॉनिक डिसीज के साथ जोड़ सकते हैं। सो नाउ ये जो रिसेंट वाले जो मॉडर्न मेडिसिन में ये सारे फैक्टर बहुत इजीली पीपल यूज टू राइट डाउन, बट हनी मैंने सालों पहले ये सारी चीज़ों का मेंशन किया था ऑर्गेनॉन में कि अगर एक पर्सन क्रॉनिक डिसीज से सफ़र होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। Then genetic itself, again, according to the modern, microbiology concept, genetic is also the one biggest the cause of varieties of, disease condition. Here, the developmental origin, then epigenetics and trans uh, generational effect. क्या है इन क्रक्स अबाउट दिस जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक? तो जेनेटिक क्या है, हमें पता है कि डिसीज कैसे होता है जब हम छोटे होते हैं उससे लेके हम जब बड़े होते हैं, जो एक्सपोजर हमें मिलता है ड्यूरिंग आवर अर्ली लाइफ में, हम छोटे होते हैं तब जो एक्सपोज करते हैं अल्टीमेटली उसका एक्सप्रेशन कब होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं। एपिजेनेटिक क्या है? चेंज इन जीन एक्टिविटी। ओके, ये थोड़ा बहुत डिटेल में है रिगार्डिंग दिस जेनेटिक। बट अगर हम कोई जीन में डीएनए में अल्टरेशन करने की बजाय डायरेक्ट दैट नॉन कोडिंग जो आरएनए होते हैं, अगर उसमें कोई चेंज होता है तो वो और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं जिसका हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एंड ट्रांसजेंडरेशन मीन्स क्या हुआ, जो जेनेटिक्स हम हमारे पेरेंट्स से पाते हैं हम हमारे बच्चों को वो सेम जेनेटिक फॉरवर्ड करते हैं, तो वो हुआ ट्रांस यू नो जनरेशनल इफेक्ट। मीन्स जो हमारे अंदर जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है दे कैन मूव फर्दर टू आवर किड्स ऑल्सो। So Honeyman, how they have taken that particular thing, they have focused more on this all type of genetic abnormality in a way of the psoric tendencies. So they have emphasized on the condition like see the tuberculosis, the metabolic disorders, they all can spread from mother or the parents to the kids and from kids to their kids. So that is how from generation also such genetics can follow. So that is also can be uh, have some relation with the disease in advanced age.